Okay, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, Yeah? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Everyone seen my PPT? Yes, ma'am. Okay, right. So unit 1 is a basic concept. Okay, we have seen some basic concept like what is management, what is the role play managers in any organizations and all. Okay, so the concept is concept of organization, companies, corporates, MNCs, everywhere is different. Okay, policy is different, ethics is different, because all of working, every company follow different kinds of policies are, but it's must, policy is must. So what is actually concept of management? So it is like that ki lot of authors, lot of management experts elaborate the definition of management. What is exactly management? So according to Mary Parker Follett, said like that कि management is an art getting things done through people. Management is an art, but getting things done through people. Okay, when people come together, okay, follow the rules, complete their task, means teamwork, working with teamwork, that is the management. Okay, if a single person and he will complete their task and also we don't call that is management, but there are lot of group of people who work together and finish their work, that is management. It's an art because the people in the group of people are unique. Everyone has a different skill. Okay, if someone is expert in data collection, someone is expert in analysis, someone is communications, good communication skills, someone is good in presentation skills. So it's an art. Okay, definition is according to Harold Kuhns like that कि management is an art of getting things done through and with people is a formally organized groups. Okay, both are different. Okay, Parker said like that कि management is an art getting thing done through people. Only people के through किया गया जो work है उसे उन्होंने मैनेजमेंट कहा है. बट सेकेंड डेफिनेशन में कहा गया है कि यस इट्स करेक्ट, बट पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप. इसका मतलब है फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, इसका मतलब है कि जैसे आप एमएनसीज में काम करते हो मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो एचआर डिपार्टमेंट है, उसका ग्रुप अलग है. दे फॉलो देयर रूल्स एंड व्हाटएवर दे कंप्लीट देयर टास्क. फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनका ग्रुप अलग है. So whatever the financial crisis, whatever the financial decisions, only they are working financial matters. They look only financial matters. Marketing team is different. Okay, they use their skills. They visit a lot of people. They interact with their customers and all. So that group is different. So group wise, organized group. Got it? So organized group जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है. जैसे हम लोग फैमिली में है, फैमिली में अगर आप हमारे यहाँ 5 पीपल है तो 5 पीपल आर यूनिक, एक जैसे हम हो ही नहीं सकते, है ना. तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्किल्स एंड दे समवन, फिर हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई कुछ. ओके, सो दैट इज डिफरेंट पार्ट. बट ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, ग्रुप होता है, एक टीम होती है उस काम को करने के लिए. ठीक है, तो तब जाके वो काम होता है. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होगा, उसमें अगर 25 लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो उनका काम
25 लोगों के बीच में होगा, 25 लोगों को पता होगा कि व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। मार्केटिंग में भी सेम थिंग, वो सिंगल पर्सन मार्केटिंग नहीं कर सकता, डिफरेंट डिफरेंट वेज में जाना, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को कलेक्ट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, इट्स अ डिफरेंट। ओके, देन थर्ड जो डेफिनेशन है लॉरेंस प्ले की, वो कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द पीपल। गॉट इट? मैनेजमेंट is accomplishment of results through the efforts of the people, means the people who come together, put their efforts to complete the task, get outcome. That is management. So all definitions are valid for management, means everyone, जैसे आपको कल मैंने पूछा था प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट, सो सबने यूनिक अपना अपना यूनिक बताया कि यस ये हो सकता है, ये एब्सोल्युटली राइट। तो डिफरेंट कंपनीज में डेफिनेशन अलग हो सकती है, डिपेंड ऑन देयर वर्क। मेडिकल कंपनी डिफरेंट डेफिनेशन, एकेडमिक्स डिफरेंट डेफिनेशन, प्रोडक्शन डिफरेंट, तो अलग अलग है, लेकिन है एक ही। अगर आप देखा जाए, पहले डेफिनेशन में कहा है कि यस पीपल का मतलब टुगेदर होना, साथ होना जरूरी है। सेकंड में कहा है कि सिर्फ पीपल ही नहीं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल को एक ग्रुप में रह के काम करना मींस मैनेजमेंट। थर्ड डेफिनेशन में कहा है कि जहां पे पीपल का एफर्ट्स होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगने के बाद जो आता है रिजल्ट्स, दैट मींस मैनेजमेंट। फोर्थ में कहा गया है हेनरी फेयल ने कि टू मैनेज is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. Everything means management is not whatever three says, but it is to forecasting, to planning, to organize, got it? To command, to coordinate with people and control to all those people. That is management. Okay. Last, Peter Drucker. What he said, management is a multi-purpose organ. Management is a multi-purpose organ that manages a business, manages managers and manages worker and work. ये पीटर ड्रकर, मतलब ये जितने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, उन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन जहां जहां वो काम कर रहे थे, जिस सिचुएशन में वो काम कर रहे थे, एवरीवन इज द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब पहला जो अगर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन देखा जाए, तो ये डेफिनेशन से हमें ऐसा मतलब जस्ट आई एम एनालिसिस कि लाइक दैट कि जो ये है हमारे मैरी पार्कर है, इन्होंने जो ये डेफिनेशन बताई है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल, तो इससे ये मतलब फील होता है कि जहाँ पे लोग कोई ऐसे सब मिल के काम कर रहे हैं, है ना, तो उन और उसका आउटपुट निकाल रहा जाए। जैसे अगर हम कंसिडर किया जाए, जैसे छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे 10-15 लोगों को गेट करके वो जो बिजनेस किया जाता है, तो उस टाइप से उन्होंने वो डेफिनेशन बनाई है। शायद वो वैसे काम कर रहे हो, या वो उस टाइम पे उस इंडस्ट्री में या उस टाइप की कंपनी में काम कर रहे हो। इसलिए आपको इन सब की बुक्स पढ़नी होगी, ठीक है, कि क्या है, मैरी ने ऐसा क्यों कहा, कि व्हाई ही सेड लाइक दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। ओके, देन सेकंड में भी उन्होंने कहा है कि नो, ओनली पीपल साथ में होने से नहीं, तो यूनिक पीपल, यूनिक ग्रुप बनना चाहिए। तो आपको ये भी बुक्स पढ़नी होगी, पढ़िए तो पता चलेगा, है ना। देन लॉरेंस का भी कहना है कि अकम्प्लिशमेंट रिजल्ट्स, जो हम एफर्ट्स लगाते हैं, मतलब शायद इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग जो फील्ड होती है, वहां पे हमें प्रोडक्ट का मतलब प्लान करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लक्स बनाना है,
हमने देखा है कि लक्स का जो एड आता है ना, बहुत बार हम देखते हैं लक्स का एड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, बहुत सारे उसमें फ्लेवर्स आते हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज उस एड को एडवर्टाइज करते हैं उस एड को। तो वो जो एड आता है लक्स का, वो जब बनाया जाता है, प्लान किया जाता है कि नहीं डिजाइन ऐसा होना चाहिए, शेप ओवल नहीं होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, या फिर रेक्टेंगल होना चाहिए, व्हाटएवर। तो उससे लेके शेप से लेके उसका पूरा प्रोसेस जो है बनने से लेके मार्केट में आने तक का जो प्लानिंग किया जाता है, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो शायद हो सकता है कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने मैनेजमेंट की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस बनाई है। अगर आपको इसमें डीप स्टडी करना है कि व्हाई ऑल 5 experts, management expert say like this, so you have to read this books. आपको लाइब्रेरी की लिंक, ई लाइब्रेरी की लिंक भेजी गई है, so please read it and analysis. Okay, what is actually management, why he said like that, why he said like that, why he say like, और मतलब सबने एक ही कहा हुआ है बट डिफरेंट डिफरेंट वर्ड में कहा है। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है मैनेजमेंट की डेफिनेशन में? यस, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes. you are. अगर मैं ये पूछती हूँ एम आई ऑडिबल, तो 4-5 लोग तो देते हैं। अगर मैं ये पूछती हूँ कि एनीवन हैव अ डाउट और आस्क क्वेश्चन, नो वन आंसर। समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? मैनेजमेंट का डेफिनेशन? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. What is modern management? Modern management, creation and maintenance of internal environment in organization where everyone perform effectively and efficiently towards the attainment of goals. Okay, so creation and maintenance of internal environment. For example, you are join MBA program, you all are people, 138 people are here, and you have, when you started MBA or what mind I have to decide why you choose MBA? Come on, don't worry, if you are wrong, I am here. Yes, hello, are you sleeping? I'm asking Better future than simple others. questions. No. Better future Sorry? than others team. Okay, better future. Okay, and for better future, what you want to do? MBA. What you decide in your mind? Are you join MBA? Yes. What else? Come on. Yeah, hello. Yes. Yeah, ma'am. Just wanted to keep learning. That's Okay, why. keep learning. Hmm. What learn? Actually, sorry to interrupt you, ma'am. Your voice is breaking. Hello. Hello. Yes. Now my voice is everyone. Yes, ma'am. Yes, your voice is clear, ma'am. Yeah, my voice is clear. Yes.
ओके कि Ma'am, Ma'am, your voice is not audible. not audible. Voice is not clear. now I am Ma'am, you are not audible. was not clear. now. No. No, ma'am, voice is very low. Still, there is some disturbance in your voice. Yeah. But I have hear you very well. मुझे आप सबका आवाज अच्छे से सुनाई दे रहा है. Ma'am, Your voice is still सबका आवाज आ breaking. रहा है, but आप ही का आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है. Okay, 1 second. Now it is okay. Yeah, it's Yes, audible. yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear? Yep. Yes, ma'am. Now, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I just No, ma'am. no. My voice Yes, is it's not audible, clear ma'am. now. It's Yeah, clear. it's audible now. It's clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's more than clear. Audible, ma'am. It's audible. Audible. I think again lost, right? Hello? Hello? Yes. My question is, hello. Ma'am, your voice is किसी के again दिमाग में ये breaking. आया है? Yes. Yes, yes. Your voice is again breaking. Voice is breaking, ma'am. Yeah. You're not audible clearly. Yes. Now I am audible. Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah. So, yes. Tell me why you joined MBA. Again. Anyone? Excuse me, ma'am. Yes. We are here to learn how Mhm. actually things work out in the industry. Correct. Okay. Anyone? To enhance growth. To enhance the skills and career growth. Very good. किसी के दिमाग में ये आया है कि someone is thinking like that कि when we joined MBA we learn lot of books, we learn different kind of subjects, we learn lot of activities which help us to grow, improve organization skills. किसी के दिमाग में आया है ये? किसी ने सोचा है कि एमबीए में इतने सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, मैं वो सारे सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट सीखूंगा, इकोनॉमिक्स सीखूंगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग जो भी है वो इतने किसी ने सोचा है? क्योंकि आजकल तो बुक्स कोई पढ़ता नहीं है. आई थिंक सो. किसी को है मतलब बुक्स पढ़ने की आदत? आप में कोई है ऐसा जो मतलब बुक्स का मतलब कीड़ा बोलता है ना कि जस्ट एक बार बुक मिल गया कि बस 2 दिन में 3 दिन में, ऐसा कोई है? यस, एनीवन? No, actually not like that. Like you, the way you have been speaking, ki book ka keeda. Not like that, but like I love to read books sometimes. Yeah, In but my someone free is time. na, someone is na, not everyone na. That's why I'm asking. Yes. Someone is. वो कीड़ा इन द लाइफ जो पढ़ते हैं ना उनको पता होता है कि अगर मैं उनसे कुछ पूछूं, मीन्स अगर मैं उससे कुछ भी पूछूं तो वो फट से जवाब दे देगा यस कि ये इसका है और ये इसमें है ना. तो दैट इज मेरा पूछने का मतलब यही था कि ठीक है आप लोग एमबीए कर रहे हो पढ़ने के लिए, प्रमोशंस के लिए, बट किसके दिमाग में आया कि इतने सारे बुक्स पढ़ने को मिलेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एक्चुअल क्या है वो हमें पता चलेगा, एवरी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट क्या होता है ये भी हमें पढ़े मतलब सीखने को मिलेगा, स्किल्स क्या यूज करना चाहिए. क्योंकि जब आप प्रोफेशन में आते हो, कोई भी प्रोफेशन में आते हो तो हर प्रोफेशन का स्किल जो है वो डिफरेंट होता है ना. मार्केटिंग का स्किल टोटल डिफरेंट है,
फाइनेंस का टोटल डिफरेंट है, सप्लाई चेन का टोटल डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का टोटल डिफरेंट है, तो अलग अलग है। तो वो स्किल्स हम सीखने के लिए या फिर हमारा जो प्रोफेशन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग एमबीए कर रहे हैं, मतलब आप लोग सब एमबीए कर रहे हो। व्हाट इट? तो मॉडर्न मैनेजमेंट कहने का मतलब यही है। यहाँ पे मैंने इसलिए एक क्वेश्चन पूछा कि क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, व्हाट इट इज। जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहां पे तो बहुत सारे पीपल के साथ आपको वर्क करना है। lot of people are there, unique people are there, lot of skills, the people have lot of skills। IT का person होगा तो he has a lot of skills of related to IT। okay? तो internal environment means like that कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वहां पे इंटरनल मतलब आप अपने कलीग के साथ, आप अपने बॉस के साथ, टीम के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी ला रहे हैं, क्या क्रिएटिव कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग में तो आप सीखते ही है, बट डजंट मैटर कि जो ऐसा ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया आप वैसा ही नहीं करते हो, क्योंकि सबका अलग अलग होता है वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ बिहेवियर। सबका स्माइलिंग फेस नहीं होता है ना। कोई हंसता है, कोई एकदम लाफिंग स्टाइल में हंसता है, तो कोई ऐसे ही हंसता है। तो किसी को कितना भी आप जोक भी सुनाओ तो हंसता ही नहीं है बंदा। तो ऐसे भी पीपल होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीवेयर वेयर यू विल गो, राइट। सो creation and maintenance of internal environment in organization where everyone perform effectively and efficiently towards the attainment of goal। सभी लोग, everyone have a goal and every people are achieve not only personal goal but organization goal। Efficient people who know the style of working। Nowadays we know everything is digitalization and working speed। got it? कि स्मार्ट वर्क देखना कि नहीं, हमें स्मार्ट वर्क चाहिए एवरी टाइम। तो व्हाट इट इज स्मार्ट वर्क ना। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि बस एक बंदा सुबह से लेके वही काम कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो एफिशिएंट, ओके। तो मॉडर्न मैनेजमेंट जो है वो कहता है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हो, मैं हमेशा जब भी लेक्चर लेती हूँ तो मैं सबको एक एग्जांपल तो जरूर देती हूँ, दैट कि कॉलेज में, स्कूल्स में, स्पेसिफिकली स्कूल्स में टीचर्स जो है वो 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, राइट। सभी को एक जैसा ही पढ़ाती है टीचर्स, किसी की पर्सनल ट्यूशंस नहीं लेती। लेकिन ओनली सिंगल बच्चा या 2 ही बच्चे मेरिट क्यों आते हैं? कि वो गॉड गिफ्टेड है इसीलिए, या वो बहुत पढ़ाई करते हैं इसलिए, या उनके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है? नहीं, सबको तो सेम ही पढ़ाया जाता है ना। बट 2 ही पीपल क्यों? बिकॉज They are ऑफ more intelligent. नो, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। Everyone is unique। But Everyone they are more intelligent than us. Ma'am, it's just they pay more attention. और They are most passionate, yeah, hardworking. so means you don't feel like that कि yes अगर मैं भी हार्ड वर्क करता तो मैं भी, just you feel like that कि नहीं अगर मैं हार्ड वर्क करता तो मैं भी ऐसा होता। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा एफर्ट कहीं ना कहीं क्या होता है, कम पड़ता है ना। तो यस, थैंक यू सो मच कि कहीं ना कहीं हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि यस कहीं तो हम क्या है, कम है, कुछ तो चीज है जो हम उनके जैसे। कोई मैथ्स में वीक होता है, कोई साइंस में, कोई तो ज्योग्राफी तो समझ में नहीं आती, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट। और कोई ऐसा होता है कि नहीं एकदम प्रॉपर सारी चीजें एकदम अच्छे से कर लेता है। तो यस, हर एक का अलग अलग ये होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। और ये तो आपने भी देखा ही है कि आप अभी फ्रेशर्स है या जो भी वर्किंग कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है डेफिनेटली एवरी ईयर हाइक उसी को मिलती है ना। तो एफिशिएंट वर्क, आप कितना एफर्ट देके काम कर रहे हो, कितने टाइम में आप अपना टारगेट फुलफिल कर रहे हो, है ना। कोई लोग बस चले यार मुझे 20,000 मिल रहा है मंथली, आई एम हैप्पी, वो चाहता ही नहीं कि वो आगे बढ़े या उसको अच्छा परफॉर्म हो,
क्योंकि वो उसका कम्युनिकेशन स्किल वीक होता है, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होती है, और जब भी कोई काम देते हैं तो हाँ कर लूंगा, टाइम पे कंप्लीशन नहीं होता है वर्क, है ना। सम पीपल आर ओनली क्रिटिसाइज द वर्क, ऐसा ही है वैसा है। सो मतलब जो वर्किंग स्टाइल होता है सबका डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट में, कोई भी मैनेजमेंट में हम लोग जब भी आप कॉर्पोरेट में, तो आपको इन सब पीपल के साथ वर्क करके खुद को डेवलप करना है, खुद को इम्प्रूव करना होता है। डजंट मैटर पीपल क्या कह रहे हैं, अपना करो आगे बढ़ो, अपना करो आगे बढ़ो, दैट इज। तो गोल होना चाहिए, जिनके पास गोल होता है। अगर जैसे आपने बोला कि समवन इज पैशनेट, समवन इज हार्ड वर्कर, समवन इज स्टडीड, व्हाटएवर, ऐसा नहीं होता है। गोल, उनका टारगेट होता है कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे फर्स्ट आना ही है। ये चीज अगर आप भी अपने में लाते हो कि नहीं मुझे करना ही है, आई वॉन्ट टू अचीव दिस थिंग, ये कर सकता है मैं क्यों, गॉट इट। तो डेफिनेटली यू वर्क, ठीक है, और आपको भी वो चीज मिलेगी। बट जस्ट फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट टू अचीव, सब छोड़ दीजिए और उसी पे फोकस करिए तो मिलेगा। पैशनेट होना भी अच्छी बात है, हार्डवर्क होना भी अच्छी बात है, बट अचीवमेंट करने के लिए जो चीज चाहिए, कंसंट्रेशन एंड फोकस, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। क्या प्रोसेस होती है मैनेजमेंट की? हमने कल देखा था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें होती है, वो प्रोसेस है। प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है वो प्लान, देन स्टाफ में उसे अलॉट किया जाता है, सब ग्रुप में उसे वो टास्क को दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट सब लोग अपना अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, और उन पे कंट्रोल भी होता है। कंट्रोलिंग मीन्स टाइम मैनेजमेंट, टाइम पे कंप्लीट होना, है ना, और परफेक्शन होना, वर्क में परफेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती है। और क्या आता है कि मैन इज रिक्वायरमेंट, पैसा भी चाहिए, मशीन्स अच्छी चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए, मेथड्स होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, और मार्केट्स। अगर ये सारी चीजें हैं तो ही आपका मैनेजमेंट का जो प्रोसेस आपने बनाया है, या फिर कंपनी का जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, वो सक्सेस होता है ना। तो यहाँ पे रिसोर्स दिया हुआ है। रिसोर्स में क्या क्या आता है? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मार्केट्स, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शंस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के? दैट इज गुड्स एंड सर्विस। अच्छे गुड्स बनाना एंड उसको प्रोवाइड करना, सर्विस देना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए डिफरेंट हो सकता है, कोई सीए फॉर्म है उनके लिए डिफरेंट हो सकता है, कोई मेडिकल फॉर्म है या मेडिकल से रिलेटेड है, फार्मेसी से रिलेटेड है, उनका अलग हो सकता है ना। बट द प्रोसेस से ये तो सभी को लगता ही है। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए। यस, किसी को कोई नहीं पूछना है? बहुत अच्छी बात है, काफी इंटेलिजेंट है आप सब। मॅडम आवाज येतोय का? हो, येस। मॅडम आपला सब्जेक्ट कोणता आहे, याच्यामध्ये काय काय मॅडम थोडक्यात सांगा ना. कोण आहे? काय नाव आहे हे? विकास शेळके. काल नव्हता का तू लेक्चर मध्ये? नाही मॅडम. सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ मॅनेजमेंट आहे। हॅलो, हो येतोय मॅडम आवाज येतोय. आज मी युनिट 1 स्टार्ट केलेलं आहे, ठीक आहे। Yes. Now the features of management. What is the features of management? So management is goal oriented. हर कंपनी का मैनेजमेंट होगा, जो भी कंपनी है, आप सबको पता है कि कोई भी प्रॉफिट के, अर्निंग प्रॉफिट के लिए ही बनी हुई है, और उसका गोल भी अचीव होना चाहिए।
है ना, जैसे आप भी पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स का भी गोल होता है कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए 2025 तक, राइट। तो ऐसे ही हर कंपनी का मैनेजमेंट का क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है कि एवरी ईयर में ये गोल अचीव करना ही है, एवरी ईयर में प्रॉफिट को क्या है, इंक्रीज करना ही है, ठीक है। दैट इज द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अगर बंदा आता है जाता है, आप भी छोड़ के जाओगे, 25 साल 30 साल 50 साल कंपनी चलती ही रहेगी, है ना। मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेटिव फोर्स, ऑलवेज माय कोऑर्डिनेशंस, कम्युनिकेशंस, एवरी, मतलब जो जो ज्वाइन होगा उनको ट्रेनिंग मिलेगा, नए नए एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज होगी मैनेजमेंट के लिए, जो भी आ रही है ना। तो कोऑर्डिनेटिव फोर्सेस जो है मैनेजमेंट के अंदर वो भी आते रहेंगे। देन मैनेजमेंट accomplishes results through the cooperation of others every time, whatever the task, whatever new technology, whatever जो भी आएगा, तो उसके रिजल्ट्स क्या होते जाएंगे। आपने टाटा कंपनी देखी है, रतन टाटा को देखते आ रहे हैं, विप्रो में जो है, इन्फोसिस जो नारायण मूर्ति है, इन सब का आपने, अगर आप कोई इंटरेस्टेड है तो आप इनका बायोग्राफी पढ़िए कि कैसे कैसे उन्होंने बिजनेस को, उनके मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया है, कितने सारे बैरियर्स का सामना उन्होंने किया है, और पीपल्स ने भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके साथ उनका रिलेशंस कैसा है, ठीक है, आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। देन मैनेजमेंट बैलेंस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, आपको मैनेज करके चलना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप मैनेजर है, बड़ी पोस्ट पे है, तो आपको तो काम करवाना है सबसे, है ना। तो आप किसी को डांट नहीं सकते, आपको उसको, ठीक है, अगर उससे नहीं हो रहा है, उससे गलती हो रही है, ठीक है, उसे आप समझाइए, उसे ट्रेनिंग दीजिए प्रॉपर, तो वो गलती नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आपको, जो बैलेंस है वो सबको लेके चलना है। एफिशिएंट पीपल्स को हायर करना है ताकि उनका काम जो है वो इफेक्टिव हो, कम टाइम में वो आपको ज्यादा आउटपुट दे। ऐसे लोग मैनेजमेंट में अगर होते हैं तो डेफिनेटली मैनेजमेंट कैसा होता है, ग्रो होता है, इम्प्रूव होता है। और ये बात तो है कि मैनेजमेंट का ग्रो होगा तो हमारा ग्रो होगा। अगर आप एक काम के लिए 10 दिन लगाते हैं और वो टाइम पे नहीं दे रहे हैं, मतलब आपको मैनेजमेंट नहीं आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट में है, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है अभी भी, जो मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग रिटर्न का ही ले लेते हैं ना, रिटर्न वगैरह जो अभी तो ठीक है, पैंडेमिक की वजह से हम लोग लेट भर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको पता है कि ये आया है, आपको पे करना ही है तो करना ही है। डिसिप्लिन होना चाहिए। मैनेजमेंट मीन्स वन वर्ड में डिसिप्लिन। वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डेट्स होती है, उसे हमें फॉलो करना है। ओके, सो दैट इज द फीचर ऑफ मैनेजमेंट, लाइक दैट की गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके, नॉन स्टॉप प्रोसेस आप इसे बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेटिव फोर्सेस, you should coordinate to each others, each department, whatever the tasks, ओके, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंटेशंस करना है तो वो कीजिए। रिजल्ट्स आने चाहिए, ऐसे नहीं कि काम ही किए जा रहे, रिजल्ट्स ही नहीं आ रहा है, आउटपुट ही नहीं आ रहा है, मतलब नहीं है काम करने में। देन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पीपल के साथ काम करके बैलेंस को, वर्किंग बैलेंस को आपको एडजस्ट करना है ना। जो भी लोग फाइनेंस में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि 31 मार्च बहुत हेक्टिक होता है, बिकॉज वो क्लोजिंग पीरियड होता है, उस दिन हमें बहुत सारे काम कंप्लीट करने होते हैं। बहुत सारी कंपनीज तो 31 को ही बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देती है, बिकॉज ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, गुड उनका जो सिस्टम्स होता है। तो डिसिप्लिन मतलब जो एफिशिएंसी होती है उनके काम करने की, वो मतलब वन डे से लेके आखिरी 31 तक इतना एफिशिएंटली वो कंप्लीट कर लेते हैं कि उनको दूसरे दिन आके फिर से वही काम या रिपीटेड वर्क नहीं करना पड़ता। तो आप भी अपने आप को ऐसे ही बनाइए, कहने का मतलब कि आपको रिपीटेशन नहीं करनी पड़े, आपके काम में परफेक्शन हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, आपका पीपल के साथ बिहेवियर अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, है ना, तब जाके आप शॉर्ट टाइम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज 50 साल तक भी आप
एक ही पोस्ट पे है, एक ही वर्क कर रहे हैं, तो नॉट मीन लाइक दैट. व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? क्या फंक्शंस है? सेम जो हमने अभी देखा था कि प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग का क्या है, डायरेक्शंस क्या है, कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, कंट्रोल कैसा होना चाहिए. तो ये क्वेश्चंस आपको पूछता है, मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मे बी इस बार आपका ऑफलाइन एग्जाम ही होगा. ओके, सो आप लोग प्रिपेयर रहिए. तो प्लानिंग में क्या क्या आता है कि व्हाट टू बी, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु टू डू, है ना. जब प्लान किया जाता है तो कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और कौन हो गया प्लान, उसको ऑर्गेनाइज किया. ऑर्गेनाइज में क्या आना है? टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या आ सकता है, क्या हो सकता है. क्लासिफाई एंड असाइन एक्टिविटीज, डेलीगेट्स अथॉरिटी एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप. आप लोग काम कर ही रहे हैं, जो भी लोग हैं उनको पता है कि टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो हर एक को एक एक टास्क दिया जाता है. राइट भाई, तू रिटर्न फाइल करना, तू जीएसटी का रिटर्न फाइल करना, तू डाटा कंप्लीट करना. फिर सेकंड को बोलेंगे कि बाबा तू एसेट का देख ले, तू डेप्रिसिएशन का देख ले, और फाइनल में जो भी रहेगा बंदा, मैं ऑल ओवर का ऑडिट करके ही बैलेंस शीट जो भी है उसका वो फाइनल करेंगे. मतलब अगर एक टीम में, फाइनेंस टीम में अगर 7-8 लोग, तो 8 को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका वर्क, वो उनके जो भी अथॉरिटी है उनके अंडर, जो मतलब बड़े लेवल पे जो भी है उनको सब दिया हुआ है. तो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार क्या होता है ना कि मान लीजिए अभी 31 मार्च आ ही रहा है, तो बहुत सारे लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, व्हाटएवर. तो जब मार्च आता है ना, तो सब लोग बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, इगोइस्टिक नहीं, मुझे ही काम करना है, मेरा ही काम है, मेरा पहले हो जाना चाहिए, और बहुत सारे. तो ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए. आपको यहाँ पे दिया है कि कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है. ठीक है भाई, अगर तेरा काम पहले हो गया है, अगला दे सीखने को मिलेगा. मेरा तो ऐसा एटीट्यूड है कि भाई ठीक है, मेरा काम हो गया ना, अभी मुझे तेरे, मतलब तू क्या कर रहा है या फिर सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, मुझे सीखना है, तो आई विल जस्ट हेल्प यू, तो मुझे सीखने को मिलेगा. तो ऐसा भी नेचर आपका होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप इन्वेंट्री में काम कर रहे हैं तो आपने इन्वेंट्री संभालनी है, दूसरा नहीं आना, मतलब करना नहीं है, ऐसा मत करिए. कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ये जो एज है आपका, ये एज सीखने का है. अगर आपके पास एक्स्ट्रा भी नॉलेज आता है किसी चीज का, तो वो वेस्ट तो नहीं जाएगा ना, बढ़ेगा. तो ऐसा कोऑर्डिनेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजिंग रखिए. ऐसा कि आप एचआर के पर्सन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकाउंट्स वाले को हेल्प नहीं करेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग वाले को हेल्प नहीं करेंगे. नहीं नहीं, ये स्किल्स आप में होना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको होना चाहिए. अगर आप में ये स्किल्स है तो आप तो कोई भी काम कर सकते हैं. नॉलेज रहेगा तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे. ओके, तो ये एटीट्यूड अभी से अपने आप में लाना शुरू करिए कि नहीं, ये मुझे आना चाहिए. ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए वर्क का. ओके, सो ये ऑर्गेनाइजिंग. लाइक स्टाफिंग. स्टाफिंग क्या होता है? मैनेजमेंट फंक्शंस का एक ये है कि स्टाफिंग, व्हाट इज स्टाफिंग एक्चुअली? मैन पावर प्लानिंग. समटाइम्स इट्स हैपेंड इफ वी आर सेइंग सम फैक्ट्स that they are very low manpower because of low wages. Okay, as per फैक्ट्री एक्ट अगर देखा जाए 1947 का जो फैक्ट्री एक्ट बना था, 48 का सॉरी, तो उसमें दिया गया है कि कम से कम 100 पीपल होने चाहिए, डिपेंड ऑन द लोकेशन और प्रोजेक्ट ऑफ वर्क. बट हमारे इंडिया में क्या होता है, आई एम सॉरी बट कम से कम लोगों में ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाता है ना. तो उससे क्या होता है कि काम में परफेक्शन नहीं होता है, काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ लो मैन पावर, लो वेजेस, है ना. तो ये सारी चीजें नहीं. जब आप प्लानिंग करते हैं तो अच्छी प्लानिंग करिए, अच्छा काम करिए, अच्छा परफेक्शन करिए. रिक्रूटमेंट सिलेक्शंस जो होता है वो अच्छा ट्रेनिंग भी अच्छी देनी चाहिए, प्लेसमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए डे बाय डे. आपने जो किया है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, आज 100 प्रोडक्ट बनने चाहिए, मतलब बनने ही चाहिए. गॉट इट? तो
इस तरह आपको इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए। अगर आप किसी फैक्ट्री के मैनेजर है और आपके अंडर में 100 वर्कर्स है, तो आपको उन 100 वर्कर्स के बारे में पता होना चाहिए कौन एफिशिएंट है कौन नहीं है। अगर ठीक है, एक बंदे को अगर मशीन अच्छे से चलाना आता है तो आप उसको वही रखिए, उसको दूसरा काम मत दीजिए, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट ओनली ऑन दैट वर्क। अगर आपने थोड़ा भी चेंज कर लिया तो आपके काम में इफेक्ट आएगा, है ना। तो फैक्ट्री के जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को जो होते हैं ना स्किल वर्कर्स जिसे हम बोलते हैं, तो वो उसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो काम ही अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी प्लानिंग आपको पहले से करनी हो कि नहीं, ये बंदा ये अच्छा काम करता है तो आप इसको वही काम देंगे, ये अच्छा करता है तो वो, तो ये प्लानिंग भी आपको करनी चाहिए। ठीक है, नाउ तो ये हो गया स्टाफिंग आपका कि मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग, प्लेसमेंट ऑफ मैन पावर, डेवलपमेंट, उनको ट्रेन कीजिए, उनको डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग्स रखिए, कुछ एक्टिविटीज करिए उनके लिए, ताकि उनका भी प्रोग्रेस हो, उनको भी कुछ सीखने को मिले। अप्रेजल्स, सम एम्प्लॉइज का रेम्यूनरेशंस बढ़ाइए, अप्रेजल्स दीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड पे उनको अवार्ड। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट के फंक्शंस में आती है। नाउ डायरेक्शंस मींस लाइक दैट मैनेजमेंट इन एक्शन क्या लेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो डेफिनेटली दे विल अप्रिशिएट यू, यस गुड, okay, excellent, so that kind of word they are used and they will promote it to you after some time or by year, whatever. So it involves leadership, communication, motivation and supervision. आप किस तरह से काम कर रहे हो। बहुत तो लोगों को आदत होती है क्रिटिसाइज करने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऑलवेज मोटिवेट, इतना मोटिवेट करते हैं कि नहीं, उनके साथ हमको लगता है कि नहीं यार, द पर्सन इज वेरी गुड एंड ही ऑलवेज मोटिवेट ईच अदर। यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स और इफ यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स, सो दे डोंट क्रिटिसाइज यू, और आपको वो कंप्लेंट नहीं करेंगे, कहेंगे डोंट वरी इट्स हैपेंड बट नेक्स्ट टाइम डोंट डू दिस, राइट। तो वो अप्रिशिएट करेंगे, वेल डन, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ऐसा करके। तो अगर आप मैनेजर है, लीडर है, तो ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। नाउ कोऑर्डिनेटिंग कैसा होना चाहिए। ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप एफर्ट्स to provide unity of actions in the pursuit of common objective. Yes, always fulfill your common objective, whatever the objective, the organizations or your work, what you decide today, if it is fulfilled or not, that is most important. Okay, so coordinations means your communications, your body language, everything is important for your work, not only personally but team work. ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपका जो भी प्लान है, वो जो भी जिस तरह से भी आपने ऑर्गेनाइज किया है, वो सक्सेस होना चाहिए। दैट मीन्स यू फुलफिल योर today's objective. Every day you have to fulfill your all goals and objective. Then controlling, what it is controlling. So establishing standards, actual performance, comparing actual with standard in including variances, taking corrective actions. Okay, so जो भी काम आप कर रहे हैं उस पे आपका कंट्रोल तो होता है, या फिर आपके लीडर्स या आपके बॉस का उस पे कंट्रोल, उन्होंने बोल दिया कि ये टाइम पे ये काम होना है, मतलब होना है, उसका कंट्रोल है कि आज का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, मतलब वो काम कंप्लीट होगा तभी उसका सेकंड प्रोसेस होगा, है ना, तभी वो आगे जाएगा। अगर आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ, सो उसे मतलब वो अप्रिशिएबल नहीं रहेगा, है ना। तो कंट्रोलिंग, हम जैसे हम अपने पे, हमारी बॉडी पे, हमारे वर्क पे जैसे कंट्रोल की नहीं, आज इतना ही है, फिनिश। तो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, so all of you understand what is the functions of management? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes. Anyone Yes, want to ma'am. ask questions? Anyone want to ask questions regarding like that? Come on.
कहीं कोई भी अगर प्लानिंग नहीं समझा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं समझा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेट, कंट्रोलिंग, कोई है जिसको इसमें से कुछ समझा नहीं हो? यस, डोंट कीप क्वाइट, यस और नो? Okay, next. It's a functions of management we have seen. Okay. Next, we'll share. So now we have seen one video regarding the roles of management. Okay. So there are many roles that a manager has within an organization. have you seen this? Performing these roles is Yes the or no? basis of a manager's job. Yes, ma'am. Yes. Yes, A ma'am. manager is a complete Yes. business person by understanding the strategic, tactical, and operational responsibilities that he or she holds. While not always explicitly stated in a manager's job description, at any given moment, a manager might have to be a coach, a liaison, a cheerleader, a conflict manager, Have you seen it now? a realist, a problem solver, an organizer, an optimist. No, ma'am. No, ma'am. Okay, one second. Not being seen. I will play it again. Okay. Actually, the screen is not visible. Yes, yes, yes. I know it. So I will share it again. There are many roles that a manager has within an organization. Performing these roles is the basis of a manager's job. To be effective at these roles, a manager must be a complete business Now? person. Now everyone seen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tactical and operational responsibilities that he or she holds. While not always explicitly stated in a manager's job description, at any given moment, a manager might have to be a coach, a strategic planner, a liaison, a cheerleader, a conflict manager, a realist, a problem solver, an organizer, an optimist, a trainer, and a decision maker. These roles can change from day to day, but one thing is for sure. A manager must understand all of their roles and how to perform them effectively. This means that a manager must have a global understanding of all the level of accountability and the appropriate way to serve both internal and external clients of the organization. Henry Mintzberg spent much of his career researching the managerial roles and behaviors of several chief executive officers, or CEOs. Mintzberg discovered that managers spent most of their time engaging in 10 specific roles. He was able to then classify these roles into 3 categories, including interpersonal, informational, and decisional roles. To better understand these roles, let's look at how they are applied by Bernard DeVos as he goes through his daily routine as a manager at a local grocery store. The first category of roles described by Mintzberg are called interpersonal roles. These roles involve the behaviors. Interpersonal roles are those roles which allow a manager to interact with his or her employees for the purpose of achieving organizational goals. There are 3 roles listed under the interpersonal roles, which include figurehead, leader, and liaison. Let's look at how these 3 roles are played out by Bernard.
Bernard were working that day. He spends time talking about daily specials, sales goals, and motivates his employees for the day by holding a friendly contest between the workers to try to sell as many of the sale items as possible during their shift. He informs his employees that the highest seller will win a $50 gift certificate for the store. As a figurehead, Bernard the boss has certain social, ceremonial, and legal responsibilities that his employees expect for him to fulfill. Bernard is information and authority to his employees. As Bernard goes about his day, he must make sure that he's monitoring the performance of his employees and how well they are doing in their sales. He checks with his employees periodically to make sure that they understand the products that are on sale and what key features to point out, as well as to remind them of their goal of winning the contest. Bernard the boss's role as a leader requires him to direct and manage the performance of his employees. He will spend time communicating performance goals, training and mentoring employees, supporting employee efforts, supplying resources, evaluating employee performance, and motivating employees towards a higher level of productivity. Bernard does not leave all the selling up to his employees because he likes to maintain contact with his customers, better understand and how he can accommodate them. He stops and chats with several customers throughout the day to get feedback on sale items and to learn about the products that his customers would like to see the store put on sale in the future. Acting as a liaison, Bernard the boss's final interpersonal role. As a liaison, Bernard communicates with internal and external members of the organization. This networking activity is a critical step in reaching organizational goals, especially those concerned with customers. The second category of managerial roles are informational roles. The informational roles include those roles in which a manager must generate and share knowledge successfully goals. There are 3 roles listed under the informational roles, which include monitor, disseminator, and spokesperson. After Bernard is comfortable with his employees and their goals, he heads back to his office to do some research for what he will put on sale next week. Bernard is reflecting on that employees gave, the information his customers shared with him that day, and he also looks at what his competitors are putting on sale at this time. The monitor role that Bernard the boss must fill involves the task of researching, locating, and choosing useful information. As a monitor, Bernard has to stay abreast of current industry standard changes occurring in both the internal and external business environments. This also includes monitoring the performance of employees and their level of productivity. Bernard combines all Yes. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes. So what you learn from this video, what it is actually. Do you understand? Yes. What happened? No one? No? Hello? Speak up. क्या हो गया? Why you all keep quiet? Am I audible to all of you? My voice is clear or not? Come on. Yes, clear, ma'am. Yes, then tell me now what you understand.
वीडियो में क्या देखा आपने? What actually you learn? The qualities of the person who should Mhm. have, like, if the manager is working or a CEO is working as a CEO in a company, Mhm. he not only focus on one work, like he not only focus on accounts, he not only focus on marketing, but he should focus on each and every corner of the company. Like he should have Correct. Means knowledge of. he played a lot of roles, right? Exactly. So, Yes. yes. So that is the mean doesn't matter nowadays. Some lot of people are started their own business. They and lot of people working with them. So आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मतलब सिर्फ मैनेजर है तो मैनेजर ही रहेंगे. नहीं, आपको बहुत सारे करने हैं. अभी तो आप मैनेजमेंट सीखेंगे कि कैसा होता है, राइट? एनीवन? और कोई है जिसे समझ में नहीं आया? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया क्या है वो? एनीवन? ओके देन, सी यू टुमारो. मैं कल सबसे पूछूंगी, ठीक है? आज जो नहीं बताना चाह रहे हैं आप अच्छे से ये करिए, कल मुझे बताइए. आई विल आस्क अगेन टुमारो. ओके, सो सी यू टुमारो. बाय बाय. Yeah, bye bye, ma'am. Good evening. Bye, Thank you. ma'am. Bye, ma'am.